So I'll start with welcoming you all to the teacher training webinar. We are extremely excited to be here with all of you. We hope that together we have a rich learning experience in exploring the unique pedagogy of experiential learning. These practices can help empower us in our classrooms to create a joyful, active learning environment. I am Komal Saxena, and I have the experience of training and doing this experiential pedagogy with the pioneers, Dr. Anju ma'am and Dr. Pascal sir, for the last 20 years. We as a team have conducted numerous workshops on this unique pedagogy with different schools and educational institutes, different boards such as state boards, central board and international boards, etc. We are very fortunate to experience this unique pedagogy which transforms the lives and learning of our students who are the future of our world. We as educators are going on the journey of experiential learning pedagogy to bring a change in our classroom scenarios. A very heartfelt congratulations to all the selected participants. There are many who filled the survey and wish to take this course, but only some could be selected. A few things were taken into consideration when selecting these teachers. आप में से कुछ ही select हुए हैं, but कई सारे interested थे. Teachers from grades 6 to 10 were given preference. Teachers who submitted consent forms, comfort level with English. There should be a minimum of 2 teachers from any one school. ये सब criteria था जिसके ऊपर हमने teachers select किए हैं. Of course आप interested थे इसीलिए, and अगर इनमें से आप criteria आपने fulfill किया तो ही select हुए हैं. This course is an initiative of Ministry of Tribal Affairs and CBSE in collaboration with Tata Trust, Tata Institute of Social Sciences, and Mahatma Gandhi International School, Ahmedabad. A dedicated team of experts from these institutions have worked for over 8 months to develop the experiential learning course on the TISEX platform. The course and webinar go hand in hand like two sides of a coin. One supports the other, so it's very important that you are regular with both. जरूरी है कि आप प्लेटफॉर्म के भी एक्टिविटीज कंप्लीट करें और रेगुलरली वेबिनार्स अटेंड करें और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी जरूरी है आपके सर्टिफिकेशन के लिए. यहाँ पे सारे मेंटर्स हैं जो आपको हैंड होल्ड करेंगे और उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ये पूरी चीज, तो वो आपको गाइड भी अच्छे से कर पाएंगे. Your active participation on the TISEX platform, WhatsApp, and during the webinars is something that will help you and us to be mutually motivated. So हो सके जितना हो सके हम participate करने का try करेंगे और interactive बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है? Okay. हो सके तो आप लोग प्लीज अपनी वीडियोस चालू कर दीजिए, तो हम एक एक्टिविटी करेंगे. और कुछ लोगों के नाम दिख नहीं रहे, जैसे Realme XT. प्लीज हो सके आप लोग अपना नाम रीनेम कर दीजिए जूम पे, क्योंकि फोन के नेम से हमें पता नहीं चलेगा. हम अटेंडेंस भी लेते हैं. जो आपके 3 वेबिनार्स हैं आपको इंश्योर करना है आप तीनों अटेंड करें फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट्स as well as performing all the activities on TISEX platform. Okay, so हम क्या खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, आप चेयर से उठ जाएंगे. एक एक्टिविटी करेंगे हम. उस दिन हमने अंजू मैम के साथ भी करी थी ओरिएंटेशन के दिन, आपको याद होगी. सभी खड़े हो जाइए तो हमें दिखेगा आप लोग कर पा रहे हैं. आप हमें देख पा रहे हैं? खड़े हो. Okay, so we will start by tapping our body. So we can start with the hands. Tap, tap. Then you can cross, head. धीरे से मुंह के पास, नेक पे, shoulders, हाथ, stomach, thighs, knees, legs. वापस टैप करते हुए आप ऊपर आएंगे. धीरे धीरे टैप वापस. मेक श्योर
आपने सारे पार्ट्स को टैप किया है अच्छे से। ओके, सो हमने टैपिंग किया है, अब हम थोड़े एनर्जाइज हो गए हैं। सो हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसमें रमनीक मैम आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो क्योंकि अब हम जागृत हैं, अब हम उठ चुके हैं और तैयार हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, तो हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम लोग महसूस करेंगे कि हम कैसा फील कर रहे हैं और उसे बोलेंगे भी। तो ये एक एफर्मेशन टेक्निक है। तो हम लोग अपनी ही जगह पे जहां खड़े हैं वहां मार्च करेंगे। मुझे सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, सो अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर लेंगे तो मुझे दिखेगा कि आप मेरे साथ कर पा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। तो अपनी ही जगह पे मार्च करेंगे हम लोग और हम लोग साथ में बोलेंगे आई एम अवेक। तो आप जब बोले आई एम अवेक तो हाथ ऊपर कर आई एम अवेक एंड रेडी आई एम अवेक एंड रेडी। फिर आई एम हैप्पी, तो आप बोल सकते हैं मैं खुश हूं या आई एम हैप्पी, किसी भी तरीके से। आपको याद होगा उस दिन हमने किया था, तो 3 एक्शन, एक आगे की तरफ, एक ऊपर और एक साइडवेज। ओके, कैन वी स्टार्ट? सो मैं खुश हूं, आई एम एक्साइटेड, I am happy. ओके, आप लोग कुछ बोलेंगे? आप कैसा फील कर रहे हैं? आप लोग ऐड करिए। Yes, ma'am. यस, यू कैन ऐड समथिंग मैम। कुछ भी वर्ड, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। ओके, सो आपको अच्छा फील हो रहा है? Yes. यस, I am enjoying. आई एम एंजॉयिंग। यस, हम सब फॉलो करेंगे। आप सबके एनर्जीज, हम एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं। यस, और कोई बोलेगा? अनंत सर आपको बोल रहे हैं, आप म्यूट पे हैं। I am also enjoying, ma'am. सुरा मैडम। यस, अनंत सर। जी जी मैडम जी। अच्छा लग रहा है। ओके, जी जी। हेलो। हाँ जी मैडम सुन रहा हूँ। हेलो। ओके, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दे दो यार इनको। ये बैकग्राउंड आपका ना बढ़िया से और म्यूट करने को बोल रही है ना, बंद कर लो। थैंक यू। ठीक है, सो अब लगता है कि हम एनर्जाइज हो गए हैं, हम एक्टिव हो गए हैं और हम रेडी हैं अपने वेबिनार के लिए और ये यूनिक एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोर्स को समझने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, ओके, सो हम सबने एक गेम खेला होगा जो हम छोटे थे तब हमने ये गेम खेला होगा। इसका नाम है चिड़िया उड़। किसने खेला है ये गेम? किसने ये गेम खेला हुआ है? मैंने खेला है मैम। यस, थैंक यू स्वाति जी। किसी ने ऐसा है जिसने नहीं खेला है ये गेम, जिसको बताना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन? आई थिंक सबने खेला होगा, राइट? चिड़िया उड़ तो बहुत कॉमन गेम है। Yes, ma'am. सो हम ये खेलेंगे, बट इसमें एक चेंज है। जब भी कोई भी ऐसी चीज जो उड़ती है, तब मैं बोलूंगी तब हमें अपने फ्लैप करते हैं हैंड्स। तो ऐसे उड़ाना नहीं है क्योंकि यहाँ दिखेगा भी नहीं। सो हमें अपनी बॉडी यूज करके और उड़ना है और दिखाना है कि वो चीज उड़ती है। और अगर वो चीज, ऐसा नाम मैंने लिया जो चीज नहीं उड़ती है, आप कुछ मत करिए। लेकिन जब कोई चीज उड़ती है तो आप सबको फ्लैप करना है, ठीक है? Everybody, you can give me a thumbs up if you have understood the instruction. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी, अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, सो रेडी? चिड़िया उड़,
यस, बोलिए भी और करिए भी। यस, सब लोग करिए प्लीज, अच्छा लगेगा। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, पंख, पंख पंख, उड़, पंख उड़, हाँ, पतंग, पतंग, पतंग उड़। आप लोग दिखा सकते हैं, बोलेंगे नहीं तो भी चलेगा, आप लोग सब दिखाइए। मेंटर्स आप लोग, उनको दिखाना पड़ेगा कैसे करना है ये, तो आपको फॉलो करेंगे वो। ओके, पतंग, गुब्बारा, सब करिए। यस, ओके। और पैराशूट, रॉकेट और तितली, हाथी, ओ ओके, मेज, मेज नहीं, ओके, कौवा, कौवा, उड़, हाँ, और कुर्सी, कुछ लोग की कुर्सियां उड़ रही हैं, नहीं। मधुमक्खी, मधुमक्खी, उड़, उड़, ओके, और चूहा, एरोप्लेन, उड़, उड़, ओके, कपड़ा, कपड़ा उड़ता है, हाँ कपड़ा उड़ता है। उड़ता है, हवा में उड़ता है। हाँ। और कुत्ता, और स्पेसशिप, उड़ता है मैम। यस, ओके। तो ये हमने छोटी सी एक्टिविटी की थी, जिसके थ्रू हम ये देख रहे थे कि आपको ये गेम आपने खेला हुआ है, और हम इसको लिंक करेंगे आप अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ, जिसके लिए आपको बोला गया था एक पेपर रखने के लिए और पेंसिल। आप लोग के पास, सबके पास है? यस मैम। ओके, पेपर पेंसिल। और बिफोर हम ये नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, मुझे पूछना है कि जब हमने ये प्लीज म्यूट कर लीजिए तो, थैंक यू। ओके, जब हमने पहली दो एक्टिविटी करी थी, उससे आपको कैसा महसूस हुआ? जब हमने एफर्मेशन किया था और जब हम टैप कर रहे थे अपनी बॉडी को, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था उस एक्टिविटी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अच्छा महसूस हो रहा था, और हैप्पी एंड फ्रीली लग रहा था। ओके, और जॉयफुल मैम। जॉयफुल, यस। और कुछ? It feels energetic. एनर्जेटिक, यस। Yeah. और आप लोग यस, वर यू मोटिवेटेड कि हमें कुछ नया करना है, तो कुछ हम थोड़ा एनर्जेटिक, अच्छी एनर्जी से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके, ऑलराइट। सो आप सबके पास वो पेपर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I have. कर लीजिए, थैंक यू। सो आपको अब एक कोई कुछ ऐसा बनाइए आप जो चीज उड़ सकती है या उड़ सके, ऐसा कुछ आपको बनाना है। आप सबके पास एक व्हाइट पेपर होगा, क्या मैं वो देख सकती हूँ? सबके पास पेपर है? यस मैम। ओके, ओके, यस, थैंक यू। तो आप सबको एक चित्र बनाना है, एक ड्राइंग करनी है ऐसी चीज की जो उड़ सकती है। ऐसे पेपर पे आपको कुछ बनाना है जो उड़ सकती है, ऐसी चीज। आप इसके लिए 2 मिनट ले लीजिए, आप सब बना सकते हैं पेंसिल से।
मैम हाँ मैम पतंग बनाए। मैम पतंग। अच्छा, अभी अब मत बोलिए, अभी शेयर मत करिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट टास्क होगा, उसमें हम बताएंगे आपको क्या करना है। ठीक है, आप सबने बना लिया है? ओके मैम। तो आप थम्स अप दे दीजिए तो मुझे पता चलेगा कि सबका हो गया है। अब सबका ड्राइंग हो गई है? सबकी ड्राइंग हो गई है? सबने बना ली है? Yes, ma'am. यस मैम। मेरी भी रेडी है। तो हम अब एक दूसरे को सिर्फ और जितना हो सके आप बिना डिस्कस किए फिलहाल आप देखिए सबकी स्क्रीन पे। सो इसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा कैमरा, वीडियो एंड नाम चेंज कर दीजिए। आप लोग फोन के नाम से अपना एक्चुअल नाम लगा दीजिए तो हम अटेंडेंस के लिए हमें इजी पड़ेगा। ओके, सो हम सब रेडी हैं अपनी ड्राइंग्स के साथ? यस मैम। यस मैम। So we will put the drawing near the camera. कैमरे के पास अपनी ड्राइंग को लाएंगे ताकि हम सब एक दूसरे की देख पाए, जैसे कि ओके। अगर क्लियरली नहीं बनाई है तो प्लीज थोड़ा डार्क कर दीजिए ताकि सब देख पाए। F41 प्लीज रीनेम कर लीजिए अपने आप को। And Realme XT please. ओके, सबने देखी एक दूसरे Yes, की ma'am. ड्राइंग्स? यस मैम। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम आपको ग्रुप्स में डालेंगे। आपको पता है हम जूम में ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं और आप ग्रुप में एक डिस्कशन करेंगे, थोड़ा कुछ काम करेंगे। आप कुछ नोट्स लिखेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे चीजें। उसके लिए मैं एक स्लाइड आपको दिखाऊंगी, आपको उसकी फोटो लेनी है। सो व्हेन आप ब्रेकआउट रूम में होंगे आप एक दूसरे के साथ उस बेसिस पे डिस्कशन करेंगे, उन पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपको अपने क्लासिफाई करना है, शेयर करना है, आपको लिस्ट करना है किसने कितना बनाया, क्या बनाया। तो पूरी लिस्ट एक होगी रेडी हमारी। और उसमें से आपके ग्रुप में फिर एक ग्रुप लीडर अपॉइंट किया जाएगा जो सब शेयर करेगा मेन सेशन में आके। तो मैं छोटे ग्रुप्स बना रही हूँ, उसमें आप एक ग्रुप लीडर अपॉइंट करिएगा, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करिएगा, कहीं लिखिएगा नोट्स, फिर मेन सेशन में आके आप शेयर करिएगा दूसरे ग्रुप्स के साथ। Ma'am. Hello. यस, ओके, ये वाला हमारा हो गया है। आपको इस स्लाइड की फोटो ले लीजिए आप, ये टास्क है शेयरिंग एंड क्लासिफाइंग द ड्राइंग्स। सो आपको ग्रुप्स में शेयर योर ड्राइंग्स एंड ट्राई टू गेस ईच अदर्स ड्राइंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स ड्रॉन, क्लासिफाई द लिस्ट इनटू एज मेनी कैटेगरीज। आप कोई भी कैटेगरी जो निकल के आ रही है आप सोच के आप बनाएंगे एंड अपॉइंट वन ग्रुप लीडर हु विल शेयर इन द मेन सेशन। समझ गए हैं? ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं क्योंकि मैं अब ग्रुप बनाने वाली हूँ। आपको इस एक्टिविटी के लिए दिए जाएंगे करीब 12 से 15 मिनट। ठीक है, अपना पिक्चर दे रहे हैं दूसरे को। प्लीज अपना रीनेम कर लीजिए। जो फोन से आ रहे हैं जिनके नाम नहीं दिख रहे हैं जूम में,
प्लीज अपना नाम डाल दीजिए। Ma'am, the point is how to rename. I think you have to, there is three dots on your right. If you can just on the top right corner, and if you can just click on it, and उसमें होगा rename option. देखिए, when you go on your own participant list, आपके नाम के बगल में more करके होता है, I think उसमें also you can do it. Rename का option है, pin, spotlight and rename. लैपटॉप से ये मैं बता सकती हूँ, फोन में शायद अलग हो। मैं जो ग्रुप्स बना रही हूँ, अगर इन ग्रुप्स में एक से ज्यादा मेंटर आ जाते हैं तो आप प्लीज वो ग्रुप छोड़ के मेन सेशन में आ जाइएगा, मैं आपको दूसरे ग्रुप में डाल दूंगी। Yes, ma'am, done. Thank you. ओके, सो मैं ब्रेकआउट रूम खोल रही हूँ। आप सबने ये फोटो ले ली है इस स्लाइड की? Yes, ma'am. Yes, ma'am, ले ली। use it in the discussion in your breakout rooms now, जो बेस्ड है आपकी ड्राइंग्स के ऊपर। ओके, so अब you take the thing. Speaker पे देखिए। सुष्मिता मैम, जैन सिंह सर, प्राची मैम, दिव्या मैम, स्वाति मैम, आप सबको एक अलॉट किया गया है ब्रेकआउट रूम। मैम एक बार फिर से बताइए, इधर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा स्कूल में। आप सबको ब्रेकआउट रूम अलॉट किया गया है, आप लोग को दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बफरिंग हो रहा है। ओके, आप सबको मैंने ग्रुप्स में डाल दिया है, आप ज्वाइन कर पा रहे हैं? अगर ये आप लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप सब एक ग्रुप में हो सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं यहीं पे। नीरज सर, आप इनिशिएट कर सकते हैं। The point is, उन्होंने बोला कि that you need certain discussion in this breakout room. So डिस्कस करना है कि हमने कौन कौन सी चीजें बनाई उस पर ना मेनली। आपने वो फोटो देखी जो स्लाइड हमने आपको शेयर करी थी, उसमें आपको अपनी पहले आप डिस्कस करिए किस किस के पास क्या क्या ड्राइंग्स है। किसी के पास एरोप्लेन है, किसी के पास बटरफ्लाई है, किसी के पास अलग अलग चीजें हैं। आप पहले वो लिस्ट करिए, टोटल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ईच वन हैज इन दिस ग्रुप। सो आप लोग कितने हैं? 8 participants. 8 थिंग्स यू हैव ना। उन 8 थिंग्स को आप क्लासिफाई, कैटेगराइज करने का ट्राई करिए। इट कैन बी एज सिंपल एज कलर, बट हमें कलर नहीं, हम सोच सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो, मोर एडवांस्ड। सो यू नो, यू कैन लुक एट दैट एंड देन आप अपनी कैटेगरी कुछ सोचिए, हाउ कैन यू categorize them. All right, thank you, ma'am. So that is the main thing. All right, please. क्या क्या वस्तुएं आप लोग ने ड्रॉ करी, क्या क्या चीजें ड्रॉ करी, उनको आपको कैटेगराइज करना है। आपको सबको प्लीज बोलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मुझे चित्रा मैम दिख रहे हैं और सब तो दिख भी नहीं रहे हैं, सुनाई भी नहीं दे रहे हैं। प्लीज मैम, कैन यू रीनेम योर स्क्रीन? राहुल कुमार के नाम से जो आ रहे हैं, एंड रेडमी, बिकॉज आपका और सैमसंग भी। हमें आपका रियल नेम चाहिए होगा फॉर अटेंडेंस, एज इट्स मैंडेटरी, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, सो आप लोग डिस्कस कर लेंगे। मैम बबीता सिंह। हाँ, आप चेंज कर लेंगे अपना नाम। ओके मैम, यस मैम, कर लेंगे डिस्कस। ओके ओके, ठीक है मैम।
चित्रा मैम आप डिस्कस करना चालू कर लीजिए। मुझे जो दिख रहे हैं लोग, आप बताइए आपके पास क्या है, इनके पास क्या है। आप म्यूट पे हैं। बबीता मैम आप भी म्यूट पे हैं। मैम मैं बटरफ्लाई बनाई। जी बटरफ्लाई, हाँ। सो बटरफ्लाई बनाया है चित्रा मैम ने। बबीता मैम आपने क्या बनाया है? सैमसंग, सुष्मिता जी, पूरन, दीवान जी। बबीता जी आपका दिख नहीं रहा है, थोड़ा पास लाइए कैमरा के। आप लोग प्लीज नोट करिए सबके पास क्या है। जो मैंने पैरोट बनाया है, पैरोट। ओके पैरेट बनाया, तो आप वो पूरा लिस्ट बनाइए और उसको आप कैटेगराइज हमें करना है। हमें ट्राई करना है कि इनमें से कौन से कैटेगरीज निकल रही हैं। किस आपने बटरफ्लाई, आपने पैरेट, अगर सबने बर्ड्स बनाए हैं, किसी ने बर्ड बनाया है, किसी ने कुछ और बनाया है, तो अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं। हेलो डिवाइस कितना है, कैटेगरी क्या कैटेगरी? यूनिट 1 जो है एक यूनिट 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। यूनिट 1 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी है और हेलो सम आपने ऐसे ड्राइंग शेयर करी एक दूसरे के साथ, क्या क्या बनाया था? आप प्लीज एक दूसरे के साथ शेयर करिए। राजीव सर आपको हेल्प करना पड़ेगा उनको। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को कैसे करना है। तो पार्टिसिपेंट मैडम इधर 7 था, अभी सिर्फ 4 ही है। हाँ मुझे लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम है या क्या है शायद। तो उन लोगों को मीन्स क्वेरीज है, प्रिंसिपल जो लोग है प्रिंसिपल को पार्टिसिपेट करना कि नहीं, मैंने बोल दिया है करना है। लास्ट फर्स्ट बैच में बहुत सारे प्रिंसिपल ने सबको किया करना है। हाँ वो ट्रेनिंग में भी प्रिंसिपल्स आए थे। हाँ, और उन लोगों का क्वेरीज है यूनिट 1 मीन्स कोर्स पे क्या करना है। तो मैंने बोला यूनिट 1 पहले वेबिनार देखिए, 3 वेबिनार होगा। वो उसके लिए हम सेपरेट मीटिंग कर लेंगे। अभी आप इसके लिए प्लीज पार्टिसिपेट करवाइए उन्हें। मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही, मुझे नहीं पता चल रहा है आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, क्या कैटेगरीज निकल के आ रही हैं। प्लीज शेयर। क्लासिफिकेशन के मेथड आपको कुछ सोच के आना है। जी बोलिए। आप सब डिस्कस कर पाए हैं? कुछ क्लासिफिकेशन का मेथड निकला? पूजा मैम आपने क्या बनाया था? आप म्यूट पे हैं, प्लीज म्यूट करिए। मैम पतंग बनाई थी। ओके सो आपने सबके साथ शेयर करा है क्या? किसने क्या बनाया है? क्या सबने शेयर किया है? नहीं पता चला मैम, सबने अनम्यूट। प्लीज शेयर करिए। पूर्णिमा मैम, साधना मैम, यस प्लीज बोलिए, बहुत जरूरी है ये कंप्लीट करने के लिए टास्क। दूसरे ग्रुप्स कर चुके हैं। आपको सोचना है मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। आपकी जो ड्राइंग्स आपने बनाई हैं, जो जो आप हमने अभी शेयर किया है, पूजा मैम, साधना मैम, यस मैम, आप लोग अपनी ड्राइंग्स वापस दिखा सकते हैं एक दूसरे को। संतोष सर क्या हो गया? देखिए तो नहीं आ पा रहा। प्रॉब्लम है थोड़ा, आप चैट में भी लिख सकते हैं आपके वर्ड्स, आपके से जो ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं आप वो चैट में लिख दीजिए। यस मैम। क्या बर्ड है, क्या क्या है, अलग अलग चीजें। हाँ थैंक यू।
फोटो दिखाने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ बोलेंगे तो आपको पूरा लिस्ट तैयार करना है, पूरे ग्रुप का लिस्ट। बर्ड है, बटरफ्लाई है, रॉकेट है, क्या क्या है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप अब सोचिए, आपको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं आऊंगी, तो आपको डिस्कस करना पड़ेगा वेज ऑफ क्लासिफाइंग दीज थिंग्स। आपके पास जो जो चीजें आई हैं, किस किस वे में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। Hello everyone. हर ग्रुप में से एक ग्रुप लीडर आपने सिलेक्ट किया होगा, आई होप, जो प्रेजेंट करेगा। कैन वी हैव द प्रेजेंटेशंस प्लीज? आप सबने क्या क्या वेज ऑफ क्लासिफिकेशन सोचे हैं, डिसाइड किए हैं ग्रुप के साथ मिलकर, वो प्लीज शेयर करेंगे। हम ग्रुप वाइज लेते हैं। रूम वन कैन गो फर्स्ट प्लीज। आनंद सर, दिनेश सर, हर्षा मैम, निभा मैम, रीना मैम, आप में से किसने कौन ग्रुप लीडर है वो प्लीज शेयर करेगा पूरे ग्रुप के साथ, आपने क्या मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन सोचा है। शिरीन मैम। Yes, ma'am. We basically had 4 drawings, as in kite, butterfly, leaf, and a bird. So all 8. Sorry, kite, butterfly, leaf, and bird. Leaf and bird. Okay, okay, yeah. Bird. Yeah. So we had all these 4 drawings. Yeah. So what kind of classification is coming out of this? As in, like the living organisms as well as the non-living. Okay. Non-living organisms, we can call them. आपने जो 4 चीजें बनाई हैं, उनमें से living, non-living निकल के आ रहा है? Yeah, absolutely. We have living categories as well as non-living categories. Okay, so one classification method is living and non-living. Very good, thank you. Non-living category. आपके पास और कोई है category कि we can move on to the next group? So that's it. Okay, all right. Thank you so much, Shireen ji. Okay, second breakout room. Divya ma'am, Rajesh sir, Rajiv sir. Yes, second group, please share your findings. आपने क्या discuss किया? Yes, Rajesh sir. जी मैम, ये हमने बनाया है मैम। हाँ, आप बोलिए, आप शेयर करिए, हमें दिखेगा नहीं, आप शेयर कर दीजिए। शेयर कर दें? आप बोलिए, बोल के शेयर करिए। हाँ हाँ जी मैम, ये हमने ना जो किया है, इसमें एक टेबल का चित्र बनाया है। चिड़िया है, पतंग है और घर है मैम। घर? जी जी। चीजें जो उड़ती हैं। घर तो नहीं उड़ते। हाँ नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं उड़ती। सर आप चीजें जो उड़ती है वो बनाना था ना। अच्छा सर, एक्चुअली मैम ये हुआ, उन लोगों ने ये बनाया, एक मीन्स बर्ड बनाया, एक ने काइट बनाया, और एक ने वो मीन्स कागज से जो हम लोग बनाते हैं ना, प्लेन वाला प्लेन, वो किया। उसके हिसाब से उन लोगों ने कैटेगोरिकली उन लोगों ने डिवाइड किया, मीन्स कौन सी चीज कितने ऊंचे उठते हैं। अच्छा, लेकिन घर नहीं है ना इसमें? घर नहीं है ना? घर नहीं है, घर नहीं है। ठीक है। तो इसमें से जो चीजें कितनी, मतलब आपने हाइट वाइज, डिस्टेंस कितना दूर जाती है, डिस्टेंस वाइज। हाँ डिस्टेंस वाइज कैटेगरी के लिए, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड कौन सी चीज हम लोगों ने कैटेगरी दूर जाती। ओके, सो डिस्टेंस बेस्ड ऑन द फ्लाइट डिस्टेंस, उड़ने का डिस्टेंस। ओके, ऑल राइट।
नेक्स्ट ग्रुप प्लीज, ग्रुप 3। ग्रुप 3 में है पूजा मैम, पूर्णिमा मैम, रोशनी मैम, साधना मैम, संतोष सर, यामिनी मैम। यस प्लीज। आपके क्या फाइंडिंग्स आए हैं? आपने किस वेज में क्लासिफाई किया है आपके ऑब्जेक्ट्स को या आपकी चीजों को? यस स्वाति मैम, आप बोलना चाह रहे हैं? प्लीज, आपने से ग्रुप लीडर, आपको याद रखना है हर एक्टिविटी हमारी इंटरैक्टिव होती है, हमें सब एक दूसरे से बातें करनी है। ये वेबिनार वैसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और आप सुनने वाले हैं, ठीक है? सो प्लीज ट्राई एंड पार्टिसिपेट, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखेंगे। यस मैम। यस प्लीज बोलिए, थर्ड ग्रुप में से कौन है? पूजा मैम, पूर्णिमा मैम, रोशनी मैम, संतोष सर, आप मुझे दिख रहे हैं, आप शेयर करना चाहेंगे कि पूर्णिमा मैम कर रहे हैं शेयर? संतोष सर, मुझे दिख रहा है आप कुछ बना रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। ग्रुप 3 प्लीज बी रेडी लेटर ऑन, हम इसके बाद आप पे वापस आएंगे। ग्रुप 4 भावना मैम, ज्योति मैम, नीरज सर, निर्मल सर, प्रियंका मैम। मैम बर्ड्स को मैंने दो कैटेगरी, एक पेट बर्ड है और एक अनपेड, मतलब पालतू चिड़िया और जो पालतू नहीं है वो चिड़िया, या इसको बोल सकते हैं बर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमंस। सो पेट बर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमंस। ओके, एंड वाइल्ड। हाँ, जो जंगल में पाई जाती है, जो हम मतलब पेट की तरह नहीं रखते हैं जिन बर्ड्स को। हाँ जंगल। हाँ ऑल राइट। और पेट बर्ड्स और वाइल्ड बर्ड्स ऐसे। ओके, पेट बर्ड्स एंड वाइल्ड बर्ड्स। और कोई कैटेगरी? हेलो मैम। यस प्रियंका मैम। लिविंग नॉन लिविंग्स में मैम, लिविंग्स में है वो आते हैं और लिविंग्स में जो है बर्ड आ जाएंगी। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक मिनट, हम आपके स्पॉटलाइट पे डालते हैं। आपकी नोटबुक में कुछ आप दिखा रहे हैं हमें? हाँ, ओके। सो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग क्या है? ट्रांसपोर्ट, एयरवेज एंड ट्रांसपोर्ट। और जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में एयर ट्रांसपोर्ट, और बर्ड्स लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप 5। ग्रुप 5 में थे अमित सर, अनुराधा मैम, कामनी मैम, प्रियंका मैम। यस प्लीज शेयर। काय बोल? यस कामनी मैम। हाँ बोलिए। यस मैम। मैम we are creating some images like kite, leaf and birds. Then we are categorized they are colorful, first category, and the second is a flying, and third is a living and non-living things. Okay, so flying, non-flying, colorful and colorful and living and non-living. Living, non-living एक हो गया. Flying, non-flying. Yes, ma'am. And then colorful and not so colorful, or black and white. Yes, depends. Yes, ma'am. Ma'am, they both things are we can use as a recreational things. जैसे कि आपकी क्या थे, आपने क्या बनाया? मैम काइट.
Okay, yes, yes. So kite और क्या था आपके पास, और क्या objects है? Ma'am, kite, birds. Okay, so you can say आप जो बोल रहे हैं recreational, yes, क्योंकि kite can be used for that and bird of course not. So recreational, non-recreational maybe can be one category, right? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Next group, group 6. Babita ma'am, Chitra ma'am, Sushmita ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Yes, please share. मैम मतलब मेरे ग्रुप में सिर्फ तीन ही लोगों ने दिखाया था, तो मैंने उसी का नोट किया। एक बबीता मैम थी, उन्होंने पैरट बनाया था, और चित्रा मैम बटरफ्लाई, और मैंने माउस बनाया था। तो मैं उसको क्लासिफाई की, मतलब लिविंग थिंग्स हु कैन फ्लाई और हु कैन नॉट फ्लाई। Okay, so flying. Am I audible, flying ma'am? objects and non-flying. कि living things that fly and living things that don't fly. Objects, no, ma'am. Yes, ma'am. Living things or animal that can fly or that which cannot fly. Yes, animals that can fly and animals that cannot fly. Okay, great. Yes, ma'am. बस एक ही कैटेगरी, एक ही क्लासिफिकेशन? हाँ मैम। All right. Yes, ma'am. और तो मतलब हम लोग ग्रुप में बस 3 ही लोग का आया था। हाँ, मुझे भी 3 ही दिख रहे हैं। Correct. Okay, no problem. Thank you. Okay. Room 7. माया मैम, प्राची मैम, रजनी मैम, स्वाति मैम। आई थिंक हमारे इस ये वाले जो वेबिनार्स हैं, इसमें फीमेल ज्यादा हैं, जो देख के लग रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं था। So let's please see now the participation also, please. I can see you all are so active. Yes, room 7, group 7. Yes, रजनी मैम, आप बोल रहे हैं? Yes, मैम। बोलिए। मैम मैंने तो बैलून बनाया है और बटरफ्लाई बनाया है। ओके। और कबूतर बनाया है। ओके, तो आपके पास बलून, बटरफ्लाई और कबूतर है, तो आप इसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन टाइप बना सकते हैं, सोच सकते हैं? आपके ग्रुप में से किसी ने सोचा नहीं है कुछ? आप अकेले जवाब दे रहे हैं? नहीं हो पाया मैम। ओके, तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं मेन सेशन में, अगर किसी और को ऐड करना है तो। अमृत सर भी थे, मुझे याद है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। माइक किसी का ऑन नहीं था उसमें। हाँ, तो ये ना हो सके तो जितना हो हम सब प्लीज, हम हर बार नए ग्रुप्स बनाने का ट्राई करेंगे, लेकिन प्लीज इंटरैक्ट करिए, बातें करिए, शेयर करिए, उसी से हम सीख पाएंगे इन वेबिनार्स में। और कोई तरीका ही नहीं है, यहाँ हम कुछ दिखाने नहीं वाले हैं, ठीक है? सो प्लीज कोऑपरेट, इट विल बी रियली नाइस टू हैव, इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस अगर आप सब पार्टिसिपेट करेंगे। ओके ओके, आई थिंक ग्रुप 3 ने अभी भी नहीं बोला है, सो ग्रुप 3 वी आर कमिंग बैक टू यू। लास्ट ग्रुप प्लीज बिफोर वी मूव ऑन। पूजा मैम, पूर्णिमा मैम, ग्रुप 3 हो गया? यस मैम। ओके, सो ग्रुप 4 बचा है। भावना मैम। हेलो, यस मैम, ग्रुप 3 हो गया था ना? ठीक है, हम ग्रुप 4 देखते हैं। निर्मल सर, नीरज सर, प्रियंका मैम, आई थिंक ये आपका बचा है ग्रुप, प्लीज शेयर करिए। मैम शेयर नहीं किए थे ग्रुप 3 में, अपने अंदर शेयर नहीं किए। ओके, यस मैम, ग्रुप 3 में काइट का आया से था। काइट मैंने प्रियंका बोल रही हूँ, मैंने तो शेयर किया था मैम ग्रुप 4 से। सो आई थिंक ग्रुप 3 का ही बाकी है।
यस साधना मैम, आपको पता है दूसरों ने क्या ड्राइंग की थी? It's a bird and parrot. Yes. Bird and parrot. Okay. Bird and parrot. Living. Yes. So आप उसको Yes, किसी कोई मेथड से क्लासिफाई कर सकते हैं? Ma'am, bird and parrot, wild animals and pet animals, both. Yes. Okay. All right. Wild birds and pet birds. Yes. Okay. And kites, non-living thing. Yes. Yes. So yes. All right. Thank you, Sadhna ji. Thank you. Okay, ma'am. Appreciate. ओके सो अभी इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने अलग अलग चीजें सबने बनाई थी और मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन भी अलग निकल के आया है. इट कैन बी बेस्ड ऑन लिविंग नॉन लिविंग, इट कैन बी वाइल्ड बर्ड्स एंड पेट बर्ड्स, फिर एनिमेटेड नॉन एनिमेटेड, बायोटिक एबायोटिक, लिविंग नॉन लिविंग जैसे. देन आपने डिस्टेंस भी बता दिया, ग्राउंड से डिस्टेंस वाइज कितना दूर है, कौन सा पास है. देन सम थिंग्स दैट फ्लाई, इट कैन बी आल्सो थिंग्स दैट फ्लाई विद फोर्स एंड विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स आल्सो. जैसे बर्ड्स अपने आप उड़ सकती हैं लेकिन शायद कपड़े को ओढ़ने के लिए विंड की जरूरत पड़ती है. सो अलग अलग हम कैटेगरी सोच सकते हैं. So we can have material के ऊपर अलग अलग classification based on material, types of material, types of color, types of texture. Then size के ऊपर रॉकेट अगर है या आपके पास तितली है, फिर कलर के ऊपर. So बहुत सारी चीजें इसमें से निकल के आ सकती हैं इस एक्टिविटी में से, राइट? मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ बोलिए. मैम जैसे कि कोई चीजें ऐसी हैं जिनकी पंख हैं, इसमें भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या ऐसी चीजें जिसके पंख नहीं है. जैसे जिसके पंख है उसमें हम मक्खी, चिड़िया ये सब आ जाएंगी. जिसके पंख नहीं है उसमें काइट एंड ये सब आ जाएंगे. Very good. With wings, without yes, wings. Yes ma'am, wings without. Yes. With feather, without yes, feather. Yes, आप feather भी बोल रहे हो क्योंकि birds yes, हैं और तितली के नहीं होंगे. So yes ma'am. जैसे कि हनी भी आ जाएगी, हाउस फ्लाइज आ जाएंगे. Very good, very good. Thank you प्रियंका. Yes, exactly. So आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये एक्टिविटी से क्या क्या हो सकता है. ठीक है, ये आपके हम हर चीज आपके जो आंसर्स होते हैं हम सब रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि आपने क्या क्या बोला और सो दैट वी कैन सी इट टुगेदर एज अ होल ग्रुप. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी वेयर आपको बोला गया था मेजरिंग टेप पेपर रखने के लिए. याद है आपको? ग्रुप में रखा था हमने. सबके पास है पेपर, एक और पेपर और मेजरिंग टेप. कैन आई सी इट प्लीज? ओके, सो अब आपको सबको इंडिविजुअली एक पेपर प्लेन बनाना है. ठीक है, आप सबको पेपर प्लेन आता है बनाना? पेपर से किसी भी टाइप का प्लेन बना सकते हैं आप. ओके, सो आप सबको एक पेपर प्लेन बनाना है इस पेपर से, और आपको बाहर जाना है और उसको 3 बार, मिनिमम 3 बार उड़ाना है, फ्लाई करना है. और आपको उसमें मेजरिंग टेप लेके फिर जितनी बार आप करेंगे, एक बार फ्लाई किया, आपको मेजरिंग टेप से फिर आपको डिस्टेंस देखना है कितनी कवर की उस आपके प्लेन में. फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट आप उसको पॉइंट मार्क करिए और फिर आप जहां तक वो उड़ता है वहां पे जाके आप मेजर करिए. 3 बार आप ये करेंगे. आपके पास आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए फ्लाइट 1, फ्लाइट 2, फ्लाइट 3. सो आप 3 बार फ्लाई करा रहे हैं उस प्लेन को और 3 बार आपके जो डेटा निकल रहा है वो आप नोट करेंगे कितना दूर गया है वो आपका पेपर प्लेन. आपको समझ में आ गया? yes ओके, ओके, आप इस चीज के लिए आप ले सकते हैं अराउंड 10 मिनट. ठीक है,
पेपर प्लेन बनाइए 3 बार। ये प्लेन हमने बनाया मैम। ओके, वेरी गुड राजेश सर। अब आपको बाहर जाके, तो आप कंप्यूटर से दूर हो सकते हैं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप 3 रीडिंग्स लेके आएंगे, 3 रीडिंग्स, डेटा कलेक्ट करना है। बाहर जाइए, जहां भी उड़ा सकते हैं, या जहां भी रूम में भी अगर जगह है तो। और ये पॉइंट्स देख लीजिए जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गो आउटसाइड, फ्लाई योर प्लेन 3 टाइम्स, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड, टाइम टेकन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आपको इस चीज के लिए 10 मिनट दिए जा रहे हैं। आप फ्लाई करिए 3 बार। लेते चलते हैं, टेप ले लीजिए। टेप ले चाहिए ना, हाँ ले चाहिए ना, हम टेप चाहिए। इसको आप यहाँ पर नहीं दे आगे बराबर कर दे। ये ना राउंडिंग आ ज्यादा दूर जाएगा, नापेंगे कैसे उसको? सुनिए ना, बहुत दूर चला गया ये तो। नहीं नाप पाएंगे इतने में, कैसे बताएंगे आप? और हवा भी बहुत ज्यादा। कैसे नहीं हो रहा, कैसा रहेंगी उसको? नहीं मैडम, ये थोड़ी इससे नहीं, ये ऊंचाई ना, हाइट ना। कहाँ से हाइट नापेंगे? हाइट कैसे नाप लीजिएगा आप? अच्छा ये अच्छा चलिए ठीक है। मैं तो हाइट मापना, कितनी ऊपर गई? ऊपर नहीं, कितना ऊंचाई, कितना लंबाई में, कितना हेलो, हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? यस बोलिए मैम। मेरा हो गया है। आपने 3 रीडिंग ले ली? जी जी मैम। ओके ठीक है, बस आप 1 मिनट वेट करिए। जब सबका हो जाएगा मैं आपको वापस ब्रेकआउट रूम में डालूंगी शेयरिंग के लिए। ओके ये देखो।
जी मैम। हेलो। जी सर बोलिए, हो गया आपका? हाँ जी मैम, मैं ना ये हमने किया है, ये मैं शो कर रहा हूँ। हाँ नहीं, अभी ये आप फर्स्ट टाइम में मैम। शेयर मत करिए सर। सर मैं आपको ब्रेकआउट रूम में डालूंगी, आप शेयर मत करिए। मैं नए ग्रुप बना रही हूँ। जी जी जी। अब आप ये जो मैं स्लाइड दिखाऊंगी इसकी फोटो ले लीजिए। 2 स्लाइड्स आपको मैं दिखाऊंगी, इनकी फोटो ले लीजिए पहले, बिफोर मैं रूम्स खोलूं, ब्रेकआउट रूम्स। आपको ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करना है, बाद में आपको अपना डेटा शेयर करना है और फाइंडिंग्स कि आपको कितना आपको डिस्टेंस आपका हुआ उड़ाने के बाद, आप एक प्लेन ने कितना डिस्टेंस लिया, ईच टाइम अलग अलग होगा ना, और उस डेटा को आपको एनालाइज करना है एंड यू हैव टू मेक ऑब्जर्वेशंस। एंड अगेन इसमें नए ग्रुप है, नया ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। एक ग्रुप लीडर आपको वो करना है, असाइन करना ही है, जो मेन ग्रुप में आके हमसे शेयर करेगा, जैसे हम पहले कर चुके हैं पिछली बार। ठीक है, इसकी फोटो ले लीजिए और इस वाले की भी, ये भी आपको करना है ग्रुप के अंदर। ये टास्क थोड़ी बड़ी है, आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, साथ में करना है आपको ये ग्रुप मेट्स के साथ। आपको एनालाइज करना है डेटा, ट्रेंड्स एंड मेक ऑब्जर्वेशंस। ईच ग्रुप अपॉइंट्स अ लीडर एंड कंपाइल्स द फाइंडिंग्स। नाउ यू हैव टू कम आउट विद 3 जनरलाइजेशन। आपको ऐसी चीजें जनरलाइजेशन आपको करनी है दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा। आपके पास जो डेटा है उसमें से आप क्या 3 ऐसी जनरलाइजेशन निकल के आ रही है, हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। And what skills and concepts can be covered through the activity? in activity के साथ आप कौन सी स्किल और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा सकते हैं बच्चों को, क्या कवर कर सकते हैं हम इस एक्टिविटी के ऊपर। आप इसकी फोटो ले लीजिए, आई होप सबने ले ली है, और इसकी भी 3B की भी। तो बोलिएगा, मैं ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ वापस। This is my airplane. So very nice मैम, शिरीन मैम। Thank you. आप लोग दूसरे लोग भी प्लीज शेयर करिए पेपर प्लेन, और उसके साथ आपकी डेटा जो निकल के आया है कि 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कितना दूर गया आपका प्लेन, क्योंकि उस डेटा के ऊपर आपको अब एनालिसिस करना है। आपने फोटोज लिए हैं, स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। दिस इज द टास्क। नाउ यू हैव टू come up with generalizations from this. Three generalizations that can be drawn from the collected data. किसी के ऊपर हो सकता है, it could be shape of the plane, size of the plane, type of paper, height, कुछ भी। ओके, प्लीज शेयर करिए एक दूसरे के साथ, दूसरे लोग भी शेयर करिए प्लीज, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 लोग बात करते हुए दिख रहे हैं। हेलो मैम, प्रियंका मैम, कामिनी मैम, यस मैम। यस प्लीज शेयर। आप लोग शेयर करिए, अपने प्लेन्स शेयर करिए, दिखाइए एक दूसरे को कितना दूर गया वो डेटा। आप लोग शेयर करिए एक दूसरे के साथ, और आपको उस डेटा के ऊपर आपको एक जनरलाइजेशन निकालनी है, राइट? यस किरण मैम, आपने उड़ाया, आपका प्लेन बहुत सुंदर है, आपने उड़ाया प्लेन किरण मैम? जी मैम। ओके, सो आप शेयर करिए, चैट में भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कितना दूर गया, दूसरे टाइम कितना दूर, तीसरे टाइम कितना। फिर आप सबके जो डेटा है ना, आपको उसके ऊपर जनरलाइजेशन करना है कि किस बेसिस पे ये डेटा जो निकला है, मतलब आप सबका अलग होगा ना, तो क्या निकल जाता है इसमें से कि शायद पेपर का क्वालिटी अलग होगा, प्लेन का टाइप अलग बनाया है किसी ने,
विंड भी हो सकती है अलग, आप सब अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। सो आपको जनरलाइजेशन निकालनी है डिस्कस करके, प्लीज डिस्कस करिए। सिर्फ किरण मैम मुझे दिख रहे हैं, मुझे दूसरा कोई ना दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है। प्लीज प्लीज डिस्कस। यस कामिनी मैम, वेरी नाइस, ओके लवली पेपर प्लेन। सो नाउ आपको ये उड़ाना है और मेजर करनी है डिस्टेंस और डिस्कस करना है एक दूसरे के साथ, राइट? यस मैम। थैंक यू। पक गया। अच्छा ओके सर, जी जी जी, चलिए सर। तो क्या डेटा क्या था सर आपका, जैसे आप ठीक अमित सर, अमित सर, अमित सर। हेलो सर, हेलो मैम, प्लीज वीडियो ऑन करिए, शेयर करिए, ऑडियो ऑन करिए, आपके प्लेन्स दिखाइए सब एक दूसरे को। कितने सुंदर सुंदर प्लेन्स बनाए हैं सबने, प्लेन्स दिखाइए। और आप ये बताइए कि हर उड़ान के साथ कितना दूर गया था आपका प्लेन, वो आपको नोट डाउन करना था। यस रजनी मैम, वेरी नाइस प्लेन। आई होप आपने 3 रीडिंग ली हैं उसकी। यस रीना मैम, वेरी नाइस। सो आपको शेयर करने हैं, आपका डेटा क्या है आप शेयर करिए एक दूसरे के साथ। मैम अभी तक हमने मीटर और फीट्स में डाटा लिए, हम लोग 3 लोगों ने डाटा शेयर किया है फिलहाल। सो आप शेयर करिए और आप उसमें से 3 जनरलाइजेशन क्या निकल के आ सकती हैं कि ऑन व्हाट बेसिस आपका ये क्यों ऐसे अलग है या सिमिलर है, क्यों हो सकती है। व्हाट वर द जनरलाइजेशन दैट यू कैन थिंक, राइट? यस मैम। पूजा मैम, स्वाति मैम, आप लोग के प्लेन्स रेडी हैं? मुझे दिख रहा है स्वाति मैम आपके पास एक्सपर्ट बैठे हैं प्लेन बनाने के लिए। यस पूजा मैम, वेरी नाइस प्लेन, आपका तो जेट प्लेन बना दिया आपने एकदम। थैंक यू मैम। सो आपने इसकी रीडिंग ली? अच्छा वेरी नाइस। अच्छा पूरा टीम बैठा हुआ है उधर, वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड। आप दूसरे ग्रुप में होंगे शायद। ज्वाइन नहीं हो पाया। अच्छा तो आप इसी में से कर रहे हैं, इन्हीं के उसमें से? yes. तो आप नाम लिख दीजिए वरना अटेंडेंस मिस हो जाएगी आपकी। नाम मुझे लिख दीजिए चैट में, ठीक है? आप दोनों का, पूजा मैम का तो है, नाम लिख दीजिए चैट में मुझे। ओके स्वाति मैम आपके बगल में मुझे लग रहा है साधना मैम है ना? यस मैम। ओके देखिए मुझे समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा शक्लें। ओके चित्रा मैम, अब आपका प्लेन कहाँ है? आप लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया है, आप पूजा मैम आपने तो पूरी टीम बन गई है आपकी अलग ही 3, तो अब आप तीनों का डेटा इनके साथ शेयर करिए, ठीक है? शेयर द डेटा, जनरलाइजेशन क्या निकल के आ रहे हैं, ओके? क्यों चेंज हुआ है उनके प्लेन का, तो आप सोचिए 3 जनरलाइजेशन, ठीक है? डिस्कस किए तो उसमें है कि फर्स्ट अभी नहीं, आप एक ग्रुप लीडर चूज करिए मेन सेशन में शेयर, ठीक है? आप एक दूसरे से डिस्कस करिए। Hello. Yes, ma'am. Were you able to share, discuss? Yes, ma'am. Okay, so आपके ready हैं generalization, 3 generalization? Yes, ma'am. Lovely. Okay, so I think we'll be back in the main session in a minute, and आप share करिए। Yes, किरण मैम बोलिए। मैम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 3.20 सेंटीमीटर गया मैम, सेकंड में 3.15 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर एंड थर्ड में 4.10 सेंटीमीटर। तो एयर का जो हवा था मैम वो थोड़ा काफी कम हल्की लो भी था, फास्ट भी था, ऐसे आप सही ट्रैक पे हैं। तो आपका एक जनरलाइजेशन आपकी हवा हो गई बेस्ड ऑन द विंड, राइट? तो आप शेयर करिए सब एक दूसरे के साथ, ठीक है? और फिर मेन सेशन में हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ठीक है? ओके। पूजा पांडे मैम, आपके साथ जो है उनके नाम बता दीजिए तो हम अटेंडेंस ले लें। म्यूट, आप म्यूट पे हैं। आकाश भास्कर, ओके। आकाश, चांदनी सिंह, ओके। ठीक है, सब आ गए वापस, अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। आप सबने अपॉइंट कर लिया अपना ग्रुप लीडर आपके ग्रुप का? कौन बोलेगा, कौन शेयर करेगा? हर एक्टिविटी में एक ग्रुप लीडर असाइन होगा और कोई ना कोई शेयर करेगा, ठीक है? यस। साधना मैम, आपके साथ 2 ही लोग हैं ना आप लोग? यस मैम। ठीक है, आप में से किसी के पास भी और लोग हैं आसपास जो बैठे हैं, उनके नाम बता दीजिए सो दैट हम अटेंडेंस दे पाए। स्वाति मैम, Realme 7i, change your name. NPG. मैम स्वाति मैम, रीना मैम, राधा मैम, सॉरी, स्वाति मैम, रीना मैम, साधना मैम, अनुराधा मैम। ये तो आपके ग्रुप का बोल रहे हो, ठीक है? ओके, सो ग्रुप 1 जाएगा पहले, और आपने जिसको ग्रुप लीडर असाइन किया वो बोलेंगे प्लीज। आकांक्षा बेबी मैम, Realme 7i। आकांक्षा बेबी, ओके, ऑलराइट। सो ग्रुप 1 में से कौन बोलेगा? ज्योति मैम, नीरज सर, प्राची मैम। प्राची मैम, आपके पास तो 3 लोग हैं उधर। प्रियंका मैम, बड़ा ग्रुप है ये, शेयर करिए। आप लोग बोल रहे थे तब। यस यस, कम ऑन। पूजा मैम, अनम्यूट करिए। जी मैम। हाँ, बताइए क्या जनरलाइजेशन निकाली आपने? मैम वही, किसी ने मेजर करने का जो यूनिट है वो अलग अलग था, जैसे कुछ फीट में मेजर किया तो किसी ने मीटर में मेजर किया, ये, और किसी का यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिफरेंट। डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन। यस यस, डायरेक्शन ऑफ द विंड इज डिफरेंट, ओके। डिस्टेंस ज्यादा कवर किया प्लेन ने, और एक बार डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन के कारण वो मतलब प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गया। राइट, सो विंड डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन अलग हो रहा था। किसी ने फर्स्ट टाइम प्लेन मतलब उड़ाया तो उसका एंगल किसी ने हेलो, हाँ, आपकी आवाज कट रही है, और फिर से बोलेंगे? बैटरी लो हो गया है। हेलो, हाँ, साधना जी बोलिए। यस मैम, हमने एनालिसिस किया कि पेपर की क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड वाइड स्पीड एंड डायरेक्शन। पेपर की क्वालिटी अलग अलग है, यस, एंड शेप, ओके, शेप ऑफ द एंड वाइड स्पीड एंड पेपर प्लेन। हाँ, वाइड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन अलग। यस मैम। यस, ओके, वेरी गुड। तो 3 चीजें आपने निकाली हैं। और नेक्स्ट ग्रुप
जी मैडम, मैं सेकंड ग्रुप से। पेपर की थिकनेस के बेस में भी थिकनेस जाएगी। ऑफ पेपर, यस प्रियंका मैम, दैट्स राइट, थिकनेस ऑफ पेपर। और साइज ऑफ प्लेन, साइज ऑफ प्लेन, यस। ओके मैम। और डायरेक्शन तो सर लोग बता ही चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड विंड की डायरेक्शन भी बोल दिए हैं। विंड जितना ज्यादा लेगा वो उतनी ज्यादा दूर डिस्टेंस कवर करेगा। करेक्ट, यस। ओके मैम। ओके, तो रजनी मैम, यस मैम, आप बताएंगे। मैम फर्स्ट में तो प्लेन नहीं उड़ा, थोड़ा छोटा बन गया था। सेकेंड में भी नहीं उड़ा, ये थर्ड में जाकर उड़ा है ये प्लेन। ओके, तो आपको क्यों लगता है थर्ड में उड़ा और फर्स्ट टू में नहीं उड़ा? मैम पेपर की वजह से, क्योंकि एक मोटी पेपर थी वो, तो वो ज्यादा ऊपर गया ही नहीं, नीचे ही रह गया। और सेकेंड जो था, जो उसकी बनावट ही सही नहीं बन पाई थी। और तो ये थर्ड जो है, आपने 3 अलग पेपर प्लेन बनाए? यस मैम। मैम आपको एक ही प्लेन बनाना था और 3 बार उड़ाना था। 3 बार तो मैं उड़ाई मैम, पर जब जो अच्छा नहीं उड़ा उसके बाद मैं दूसरे ये थर्ड बनाई हूँ। अच्छा, ओके ओके, तो आप बोल रहे हैं थर्ड प्लेन आपका अच्छा बना और उसको आपने 3 बार उड़ाया, करेक्ट? अच्छा तो मैम मैं बोल नहीं पाई, ये है कि फर्स्ट वाला गया ही नहीं, उड़ा ही नहीं ऊपर। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, क्योंकि मोटा था ना पेपर, तो आपने अलग अलग प्लेन बनाए, उससे आपको पता चला कि उड़ कौन सा रहा है बेटर, फिर उसको आपने यूज किया फॉर डेटा कलेक्शन, राइट? विच इज वेरी गुड। यस मैम। दैट इज हाउ बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, राइट? ट्रायल एंड एरर, ये एक्सपेरिमेंट ही होती है ना, इन्वेस्टिगेशन, कि हमने उनको बोला पेपर बना प्लेन। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप मोटा पेपर लीजिए, पतला पेपर लीजिए, कलर्ड लीजिए, प्लेन लीजिए। आपने जिसने जो लिया, अलग अलग चीजें बनी और आपने तो 3 बना दिए। सो आपने तो ऊपर भी डाइवर्स हो गया आपका डेटा, राइट? आपने एक प्लेन से 3 नहीं, आपने 3 अलग बनाए और तीनों देखे, तब वो आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। उसी से तो आप सीख रहे हैं कि मोटा पेपर है इसीलिए। तो यू हैव लर्न, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल। तो आपने खुद ही एक्सपीरियंस करके सीख लिया, राइट? कि ये पेपर मेरा बेस्ट है। मोटी में आती है ना, उससे बनाई, उसकी वजह से वो उड़ नहीं पाया। करेक्ट, हाँ, तो वो आपने जब करा तब पता चला ना। आप मुझे थियरी बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा जब तक मैंने बनाया नहीं है खुद से, करेक्ट? ओके, थैंक यू सो मच रजनी मैम। ओके, लनिता पांडे जी। ओके, नेक्स्ट ग्रुप कौन बताएगा? यस, ग्रुप सेकंड मैडम। यस, दिनेश सर। जी दिनेश, या फर्स्ट थिंग है मैडम ये कि मेजरमेंट यूनिट था, जैसे कोई फीट में है, कोई किसी का मीटर्स में है। और दूसरा था कि शेप ऑफ प्लेन का आकार था वो। यस। और दूसरा था थ्रोइंग, प्लेन को हम किस फोर्स से फेंकते हैं, कितना बल लगा के फेंकते हैं, किस हाइट से फेंकते हैं। जी वेरी गुड, ओके जी, फोर्स अप्लाइड। और जी, और है मैडम ये जैसे, हाँ लगभग 3-4 पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट थे, जैसे इसमें से मेन ये 3 है जो डिफरेंट है फर्स्ट वाले ग्रुप से। ओके ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच दिनेश जी। अगला कौन बोलेगा? नेक्स्ट ग्रुप प्लीज, ग्रुप 3 बचा है। यस सरस्वती मैम। मैम जितना हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, अगर ज्यादा फोर्स लगाए तो प्लेन बहुत आगे गया, और कम फोर्स लगाए तो पीछे आ गया, कम दूरी पे गया। और एक साइज पे डिपेंड करता है मैम, हमने अगर छोटा प्लेन बनाया तो ज्यादा दूरी तक गया, और जरूरत से बड़ा प्लेन बनाया तो थोड़ा उसके अपेक्षा कंपैरिजन कम दूरी पे गया। तो एक साइज भी एक डिपेंड करता है। साइज आपने बोला, फोर्स बोला, और तीसरा मैम डायरेक्शन, मैम अलग अलग डायरेक्शन पे गए, हवा के दबाव। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। और कोई, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? आई थिंक हमने काफी सारे जनरलाइजेशन कवर कर लिए हैं। अलग अलग ग्रुप्स ने 3 बोले थे, तो काफी सारे कवर हो गए, और आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम ये चीज कर सकते हैं, राइट, बच्चों के साथ। तो मैडम वन थिंग मैंने ऑब्जर्व किया, जो मीन्स मैंने डिफरेंट एंगल से ये थ्रो किया था,
एक किया था 90 डिग्री एंगल से, एक किया था 30 डिग्री एंगल से, और एक किया था 45 डिग्री एंगल से। मीन्स इतना एक्यूरेट नहीं था बट आसपास ही था। मैंने ऑब्जर्व किया जो 45 डिग्री एंगल से जो जिस बार मैंने फेंका उस टाइम ही ज्यादा डिस्टेंस ये कवर किया। So angle also makes a difference. Very good. Okay. ठीक है। So ये देख लीजिए, हमने कंपाइल की है लिस्ट आपके बोलने पे। अब ये बताइए कि कौन से स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स हम इस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। आप लोग सोच के बताइए। आप लोग ने डिस्कस तो किया होगा ग्रुप्स में। आप क्लास में कौन से कॉन्सेप्ट्स, हाँ बोलिए। फिजिक्स में हम लोग यूनिट्स के बारे में उनको सबसे पहले बता सकते हैं, एंड फोर्स सप्लाई के बारे में बता सकते हैं, कैसे वो यूनिट्स, एंड देन सर ने अभी शेयर किया उस हिसाब से हम प्रोजेक्टाइल मोशंस भी बता सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, यस। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बोला आपने, और बोलिए और क्या कर सकते हैं? जैसे कि सर ने बोला डिफरेंट टाइप के एंगल्स भी बता सकते हैं हम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, ओके। ये टाइम डिस्टेंस स्पीड का भी आ जाएगा मैडम। टाइम डिस्टेंस, यस, कांसेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस, टाइम, डिस्टेंस। मैम इसमें न्यूटन की गति, ओके, ऑलराइट, यस बोलिए। न्यूटन की गति को भी इसमें शामिल किया जा सकता है मैम। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, राइट? जी, ओके, यस। टाइप्स ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और मैम करके सीखने को, कि जब हम करेंगे तभी सीखेंगे। वो तो बिल्कुल सही बात है, वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। हम करेंगे तभी सीखेंगे, राइट? तो हम भी वही करेंगे और बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, है ना? यस मैम। और इसमें आपको बहुत कुछ मटेरियल भी नहीं करना है, सिर्फ एक पेपर था आपको और मेजरिंग टेप रखना था, करेक्ट? और इसके साथ कितनी सारी चीजें बच्चा सीख सकता है। और आप सोचिए और सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं? इसमें मैडम इसमें एक चीज और है, शेप्स ऑफ प्लेन्स, आकार उसका, प्लेन का आकार किस टाइप का है। टाइप्स ऑफ प्लेन्स, शेप्स ऑफ प्लेन्स, ओके। हाँ मैडम, हेलो, यस बोलिए। यदि उसको हाइट ऊपर की ओर उड़ाते हैं, ऊपर हमारा हाथ चला जाता है यदि, हाँ, तो उसकी गति कम होगी, और समानांतर जैसे फेंकते हैं हाँ, तो उसमें ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है। तो इससे हम क्या सिखा सकते हैं बच्चों को? क्या सब्जेक्ट और क्या स्किल्स हम सिखा सकते हैं? क्या स्किल्स बच्चा सीखेगा? अभी इसमें मैडम बल के बारे में भी सिखा सकते हैं, फोर्स सिखा सकते हैं, डिस्टेंस सिखा सकते हैं, फ्लाइंग सिखा सकते हैं, इसमें हाइट भी सिखा सकते हैं, मेकिंग अप प्लेन्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, प्लेन बनाना, करेक्ट? वही तो मेन है। जी बिल्कुल, जी। हम तो बड़े, हमने कहीं ना कहीं बनाया होगा, छोटे बच्चे तो सीखेंगे ना हमसे, तब बना पाएंगे। और अलग अलग तरीके के प्लेन्स भी बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन, डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लेन्स, करेक्ट, वेरी नाइस, यस। मैम अगर इसे स्कीइंग के बारे में ले तो मैम ये प्रदर्शन विधि के द्वारा कहलाएगा मैम, कि प्रदर्शन विधि से हम बच्चों को दिखा भी रहे हैं और उन्हें सिखा भी रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स, वो तो बिल्कुल सही है। उसके बिना तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ही बेटर लर्निंग होगी, वो तो सही बात है। ठीक है, ओके। और कुछ लैंग्वेज में और कोई चीज और कोई सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स जिससे कर सकते हैं हम? आई थिंक काफी सारे कॉन्सेप्ट तो निकल के आए हैं इसमें से। सो आप सोचिए एक एक्टिविटी की वजह से कितना सब बच्चा सीख सकता है, क्योंकि ये हम फोकस भी कर रहे हैं ये ग्रेड्स के ऊपर, राइट? सो देन वी कैन थिंक लाइक दैट। यस बोलिए सर, बोलिए। इसमें मैडम गणित पे बहुत सारा चीज आ सकता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल आ सकता है, मेजरमेंट आ सकता है, डिस्टेंस आ सकता है, हाइट्स आ सकते हैं, लेंथ आ सकता है, एरिया कवर बाय प्लेन आ सकता है। हाइट भी सिखा सकते हैं सर इससे, हाइट, डिस्टेंस, सभी एरिया भी कवर कर सकते हैं, जैसे प्लेन मूव करता है तो कितने एरिया को कवर किया उसने, एरिया, लेंथ है, हाइट है, जी।
Yes, perfect. Okay, thank you. Okay, अब हम इसी के ऊपर एक मूवी देखेंगे, ठीक है, जो हमने बच्चों के साथ रिकॉर्ड करी है, which is about मेकिंग पेपर प्लेन्स। और इसमें बच्चे क्या क्या करते हैं आपको ये ऑब्जर्व करना है। आपको 3 चीजें इसमें नोट करनी है: रिसोर्सेस, यूज ऑफ बॉडी एंड स्पेस, ग्रुप डायनामिक्स एंड सेंसेस यूज्ड। सेंसेस आपको पता है, राइट? विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, वैकॉग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखिए, ये स्लाइड की फोटो ले लीजिए। आपको वो मूवी देखते हुए ये 3 चीजें को माइंड में रख के एनालाइज करना है। ओके, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, ग्रुप डायनामिक्स, हाउ डू द स्टूडेंट्स इंटरैक्ट, are they in groups or working individually, then senses used, visual, auditive, kinesthetic, olfactory, gustative। ओके, ये सारी 3 चीजें माइंड में रख के आप वो वीडियो देखिए और नोट्स लीजिएगा, क्योंकि हम बाद में शेयर करेंगे। ओके रमनीक मैम, अब आप वीडियो दिखा सकते हैं। यस मैम। नहीं, अब हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आपने वो जो 3 क्राइटेरिया बोला है उनके बेसिस पे आपको वो करना है। यस एनालाइज करने का, ठीक है। Make a group of 3. Fire in a mountain. Fire in a mountain. Make a group of 4. Make a group of 7. In this activity, we are going to divide the whole class into 2 groups. Group A, Group B. One group will be the performer group and second group will be the observer. What group A has to do, you all have to form a 3D structure of an aeroplane using your bodies. It means in a group you all have to decide a structure that how you can form an aeroplane using your body. अच्छा वो जो होता है ना ऐसे कर्व सा होता है लास्ट में भी आ गया। तो ये idea, but first 4 students lie on the ground and 2 and windows. Someone can yes on Now you all are ready to make the 3D structure of aeroplane? Yes madam. So now start. Finger like this. Come here. Here. Dakshish. Here. Okay, body.
Now group B, what you all have to do, you have to just observe them. Each and every student and what their position. You have to make three changes in the structure so that it becomes difficult for them to guess. So make just small changes so that they can't, This is it. You have to just observe them again, and then whatever the changes you are finding, you have to just point out towards that change. Right. Okay. Ma'am Anurag was there. Ma'am Anurag was here. Ma'am Anurag raise your hand. हो गया, सही हो गया। Okay, now group. They were chummy. Is it right? Yes, they are right. Now second one. Ma'am, wings. All of us stand up. Stand up. Just clap. ओके, आप लोग को कैसी लगी वीडियो? अच्छी थी मैम, नाइस वीडियो। अच्छी लगी? हम आपके ग्रुप पे भी डालेंगे, वो बाद में भी आप वापस देख सकते हैं। अच्छी है मैडम। वीडियो मैम। यस मैम। बाद में वापस आप देख लीजिएगा आराम से अपने पेज पे। I have recorded. Ma'am, I have recorded video. Okay, we will share it with you also. ठीक है, अब आप हमने इन 3 बेसिस पे एनालाइज किया है। होप आप लोग ने नोट्स लिखे हैं। लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, ग्रुप डायनामिक्स, स्टूडेंट्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ग्रुप्स में, अकेले कैसे, और कौन से सेंसेस यूज्ड हुए हैं उस पूरे मूवी में, जो जो एक्टिविटीज हुए हैं। अगर नहीं लिखा है तो आप अब लिख सकते हैं। आप रेडी हैं डिस्कशन के लिए? यस मैम। ओके, तो बोलिए, जिसको आप कोई भी शेयर कर सकता है, इसमें हम ग्रुप वाइज नहीं जाएंगे। रजनी मैम, आपको बोलना है? यस मैम। बोलिए। इसमें प्लेन बनाने का तरीका समझ में आया मैम। बच्चे कैसे ग्रुप बनाकर उसको कहाँ पर गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसको बताए। हेलो, हाँ, इसमें रिसोर्सेस क्या यूज हुए, ग्रुप डायनामिक्स कैसा था,
और सेंसेस कौन से यूज हुए, इनके बेसिस पे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स बॉडी यूज करी, करेक्ट? यस रिसोर्स वाज बॉडी एंड यस मैम, स्पेस, यस हमने ग्राउंड, ठीक है। और क्या किया मैम? इसमें जो भी यस किरण मैम, मैम इसमें जो भी मतलब आप म्यूट हो गए हो किरण मैम। जो भी टीचर्स के जो भी टीचर्स जो नॉलेज दी मैम बच्चों को, तो बच्चे क्या किए उससे जनरली मतलब एक ज्ञान सीखे, मतलब शिक्षा सीखे कि जो भी टीचर्स उनको नॉलेज दे रही है उसको बच्चे एक्सेप्ट किए, उसको सोचे समझे, ग्रुप में डिस्कशन किए, उसके बाद वे लोग ग्रुप्स में जो भी गेम्स है या गेम्स खेले या फिर जो भी स्टडी का जो भी रीजन वो स्टडी किए, ग्रुप में रह के समूह में रह के वे लोग खेले, समूह में रह के वे लोग खोजबीन किए। जैसे कहा जाता है मैम कि खोज करने से जिज्ञासा बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, तो वे लोग डिस्कशन करके अपना नॉलेज बढ़ाए, और साथ ही साथ एक नॉलेज एक पर पर्सन नहीं लिया मैम, एक नॉलेज जो भी नॉलेज मिला वो सभी ग्रुप के लिए था। करेक्ट। सो पूरी लर्निंग हमने ग्रुप में की, राइट? आप ये कहना चाह रहे हैं, है ना? पूरे ग्रुप ने एक साथ पढ़ा है, एक साथ करा एक्टिविटी, एक साथ सीखा और डिस्कस किया, शेयर किया। ये जो ग्रुप डायनामिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है अपने क्लास में भी फॉर अ बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट? क्योंकि इंडिविजुअली बच्चा सीखता है लेकिन लिमिटेशंस होते हैं। जैसे ही ग्रुप में हम चीजें करते हैं, सब एक दूसरे के साथ सीखते हैं, शेयरिंग करते हैं, लर्निंग बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाती है, राइट? सो बहुत जरूरी है हम एक्टिविटीज ऐसे प्लान करें जो ग्रुप्स में हो, ठीक है? और बिल्कुल सही कहा आपने। और सेंसेस क्या लगता है आपको यूज हुए? किस टाइप के सेंसेस यूज हुए? मैम मेनली वी आर सीइंग द 3 types of senses are uses: kinetics, use of muscles, visual, kinesthetic, visual, आंखें, yes, yes देख ma'am, के एक दूसरे and को, then yes ma'am, and then third is the auditory. Auditory, बिल्कुल, they are listening, instruction, listening, yes ma'am, listen the small instructions and cooperate to each other. yes, collaboration, cooperation, ये skills develop हो रही हैं यहाँ पे, right? yes ma'am, very very important. okay, चलो हम इन मूवी में से अब ये देखते हैं कि हम हर सेशन में और हम इस स्कूल में भी एक चीज हम बोलते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। अब हम रिफ्लेक्शन मूवी का रिफ्लेक्शन करेंगे। ये दूसरा है बोल दे ओके, तो आप ये देख सकते हैं हम रिफ्लेक्शन को इन 4 भागों में डिवाइड करते हैं: व्हाट, हाउ, व्हाई एंड टू लर्न व्हाट। तो अगर ये मूवी में आपको याद होगा, बच्चे एरोप्लेन बन रहे थे खुद बॉडी यूज करके, राइट, ग्रुप में, तो ये होता है व्हाट। और हाउ होगा इनको डिवाइड कैसे किया गया, प्रॉपर इसको एक एक चीज हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे वो गतिविधि हुई थी। और जैसे एक ग्रुप बिकेम अ पार्ट ऑफ एन एरोप्लेन, दूसरा ग्रुप ने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट ग्रुप मेड सम चेंजेस टू द सेकंड ग्रुप एंड दे हैड टू अगेन ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई द चेंजेस। ग्रुप्स टू टर्न्स टू डू दिस। नाउ व्हाई, वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज में कि व्हाई डिड द व्हाई वाज दिस एक्टिविटी डन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लर्न। ये 2 चीज बहुत जरूरी है। हम हर चीज एक्टिविटी इसलिए प्लान करते हैं कि बच्चा कुछ उससे सीख रहा है, कुछ स्किल सीख रहा है, कुछ टॉपिक सीख रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहा है, राइट? सो इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये देख पा रहे हैं कि इट एनकरेजेस कोऑपरेशन। ये ऑलरेडी किरण मैम ने बहुत अच्छे से बोला कि हम जब ग्रुप में एरोप्लेन बन रहा था तो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, ग्रुप वर्क, this will also increase group bonding or sharing ideas with group members,
will make it a very enriching experience. और creativity, presence of mind, decision making, ये सब skills हो रहे हैं use और apply, शायद हैं और अप्लाई कर रहे हैं, या तो नया सीख रहा है बच्चा। जब वो एक्टिविटी करता है एक दूसरे के साथ ग्रुप में, तो टीम वर्क है, कोऑर्डिनेशन है, इमेजिनेशन, प्लेन दिखता कैसा है, हाउ विल द चाइल्ड इमेजिन दीज थिंग्स। जब तक वो खुद नहीं बनता या ड्रॉ करता या एक्टिंग करता, ये सब तरीके हैं उनसे ये स्किल को टच करने के। हम कैसे पता चलेगा बच्चा क्या सोच रहा है। और लीडरशिप, आप देखेंगे पूरे ग्रुप में अगर वो बच्चा प्लेन बन रहे हैं सारे, एक बंदा होगा, एक बच्चा होगा जो बोलेगा आप ऐसे करो, ये आप तुम करो ऐसे, तुम ऐसे लेटो, तो वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, वो लीडर बन जाएगा और वो सबको गाइड करेगा। ठीक है, हाउ टू बिकम द व्हाटएवर। इस एक्टिविटी को आप अलग वेज में भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, सिर्फ प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है बॉडी से, आप कुछ भी बन सकते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बहुत जरूरी है, मेमोरी की, कि अच्छा मैंने देखा पहले तो प्लेन ऐसा दिख रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे याद था, क्या चेंज हुआ, अब वो मुझे याद नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। सो ये काफी सारी स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं, जब बच्चे में है वो सीखेगा। अब टू लर्न व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, द टॉपिक, सब्जेक्ट के अंदर जो आता है कॉन्सेप्ट, वो आएगा इसमें। जैसे आप ऑलरेडी इतना सब बोल चुके हैं अबाउट मेकिंग पेपर प्लेन, यहाँ प्लेन बना रहे हैं बॉडी के साथ। सो मेकिंग अ मैप, यू कैन डू दिस लेटर ऑन इन सम अदर ग्रेड। ज्योमेट्रिकल शेप्स छोटे बच्चे बना सकते हैं, राइट, हेक्सागन है, ट्राइंगल है, सर्कल है, जब फिर उससे आप आगे बढ़ के सीख सकते हैं अलग अलग चीजें। एंगल बन सकता है, अर्थ साइंसेस हो सकते, हेमिस्फीयर, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, कॉन्टिनेंट, लैंडफॉर्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम सीख सकते हैं थ्रू दिस एक्टिविटी। और आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। इसके अलावा लगता है आपको कि कुछ और कर सकते हैं बच्चे? क्या सीख रहे थे इस वीडियो के थ्रू? आपके पास आइडियाज हैं कुछ? यस यस रजनी मैम। मैम इसमें वो करके सीख रहे थे, किसी चीज को करके सीखना ज्यादा ही मतलब हैंड्स ऑन। यस हैंड्स ऑन लर्निंग हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई हम ये सब आपको दिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो आइडिया है, हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट। सो बिल्कुल आप समझ रहे हैं। अब एक हम करेंगे काम, अब हमने ये सारी चीजें टॉपिक ऐड कर सकते हैं क्या, लर्न थ्रू बॉडी पार्ट्स? यस ऑफ कोर्स, बॉडी पार्ट्स लर्निंग अबाउट दैट आल्सो। यस, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। हम एक्चुअली बॉडी के साथ वो ऑर्गन्स भी बन सकता है, राइट, हार्ट बन गए, लंग्स बन गए, एंड अलग अलग चीजें गैस कर सकते हैं बच्चे। सो हम बहुत सारी चीजें कुछ भी बन सकते हैं, बॉडी यूज करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो नाउ लेट्स हम रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द होल सेशन। ठीक है, ये आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, ये आपको लिखना है, और सीओपी पोस्ट आपको आएंगे हर हफ्ता। ठीक है, और इसको आपको सबमिट करना है। आप नोटबुक का फोटो भेज सकते हैं, टाइप करके भेज सकते हैं, कैसे भी, बट ये फॉर्मेट होगा, मैं भेजूंगी, डोंट वरी। बट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं ओरली, तो आपको इजी रहेगा होमवर्क करने में बाद में। ठीक है, सो लेट्स लुक एट ऑल द एक्टिविटीज व्हाट वी डिड टुडे। आपको याद होगा पहले हमने किया क्रिया योग और एफर्मेशन। सो अब आप ही लोग मुझे बताएंगे व्हाई वी डिड इट और हमने क्या सीखा, एंड ऑल्सो हाउ वी डिड इट, दैट्स ऑल्सो फाइन। यस प्लीज, एनीबडी कैन गो। हम सबको चाय का टाइम हो गया है, मुझे पता है, प्लीज थोड़ा शेयर करिए। हाँ यस रजनी मैम, आप बोल रहे हैं? इसमें मैम उन लोग की गतिविधियां क्या हो रही थी, उसमें सीखने को मिला कि बच्चे मंगलू चालू करो लाइट को, अभी मीटिंग चालू, चालू बंद हो गया, एक मिनट। ओके, लेट्स लुक एट क्रिया योगा एंड एफर्मेशन। जब हमने टैपिंग किया था,
एफर्मेशन दिए थे वो उस एक्टिविटी से बच्चा क्या सीख सकता है? यस, और कोई बोलेंगे प्लीज? किरण मैम, सोनी मैम, मैम खेल विधि से सीखना। मैम बोलिए। खेल विधि से सीखना, जो भी बॉडी को हेल्दी कर सकता है, कर सकता है, एक्टिव रह सकता। ओके, तो हम ये सीख सकते हैं अबाउट मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। ठीक है, जब एफर्मेशंस हम बोलते हैं, अच्छी चीजें बोलते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हमारी वेलनेस के लिए, राइट? ओके, आप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क वीक है, चैट में डाल सकते हैं आपके आंसर्स। एंड अभी हमने चिड़िया उड़ किया था, वो एक्टिविटी से क्या बच्चा क्या सीख सकता है बताइए? व्हाई और टू लर्न व्हाट? मैम इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलता है बच्चे का कि उनका कंसंट्रेशन कितना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट टाइम व्हाट वी आर डूइंग। यस मैम, यस यस यस। और ऑब्जर्वेशन, क्या कर रहे हैं एक दूसरे से, क्या यू नो कीप बीइंग अलर्ट आल्सो, राइट? listening skills, can we say listening skills, because we have to listen to the instruction. Yes, okay. और इसके साथ क्या कॉन्सेप्ट सीख सकता है बच्चा इस एक्टिविटी से? इससे कौन सी चीजें उड़ सकती हैं, कौन सी चीजें नहीं उड़ सकती हैं, उससे उससे ज्ञान होगा। करेक्ट, उस पे ध्यान जाएगा बच्चों का। ठीक है, ये स्टार्टर हो सकता है हमारे क्लास के लिए, एक एनर्जाइजर, थोड़ा फन। मैम बच्चे से भी जान सकते हैं कि चिड़िया उड़ती है, कि चिड़िया उड़ती है, वो फ्लाइंग बर्ड्स है, बर्ड्स लोग उड़ती है, वो जान सकते हैं बच्चे लोग। करेक्ट, वेरी गुड, ओके। अब हम तीसरी एक्टिविटी पे जाते हैं, ड्रॉ थिंग्स दैट फ्लाई। उसमें से बच्चा क्या सीख रहा है और पढ़ाई में क्या सीख सकता है? मैम उसमें काफी सारे चीज है, जैसे कि मैथ्स में आप ले लेते हैं तो हाइट, एरिया, डिस्टेंस, न्यूटन्स लॉ, फिजिक्स में जी फोर्स, ये सब। हमने ड्राइंग की है, अभी हमने पेपर प्लेन नहीं बनाया, तो अभी हम ड्राइंग पे हैं। तो और क्या क्या सीख सकता है? सिर्फ फ्लाई जरूरी नहीं है, प्लेन या कोई भी चीज बनाए, कुछ भी बना सकता है, राइट बच्चा? तो उससे क्या क्या सीखेगा बच्चा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना चीजों को। एग्जैक्टली, स्केचिंग करना है ना, ड्राइंग करना, स्केच करना जी। यस, दैट इटसेल्फ इज अ स्किल इन आर्ट जो मैम क्रिएटिविटी भी सीख सकता है। हेलो मैम। यस मैम, क्रिएटिविटी भी सीख सकता है। यस, क्रिएटिविटी। आपका नाम क्या है मैम? आपका नाम नहीं दिख रहा है। मैम पूजा सिंह। पूजा सिंह, ओके ओके। सो क्रिएटिविटी भी है, वेरी गुड, दैट्स राइट, ओके। और इसके हिसाब से हम छोटे छोटे इंसेक्ट्स जैसे होते हैं, हनी बी, हाउस फ्लाइज, इन सब के बारे में बता सकते हैं कि इनकी साइज। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। यस मैम, एक्टिविटी बच्चे बहुत सारे एक्टिविटी के थ्रू। यस, ओके, ऑलराइट, ओके, दैट्स राइट। एक्टिविटी बच्चे बहुत सारा चीज जानते हैं आपका। Okay, now classifying the drawings वाली activities। मेजरमेंट बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। Yes, measurement also। और हम जब ड्राइंग करते हैं तो हम उसको भी तो मेजर करके एक्यूरेसी से बनाते हैं, राइट? कभी कभी हम क्या सोचते हैं, कितना बड़ा कितना छोटा, कोई चीज इतनी बड़ी है बट हम छोटा बना रहे हैं, सो वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी हो सकती है। मैम बच्चे मेजरिंग करना सीखेंगे, बच्चे को इसमें मैथ रिलेटेड बच्चे सीखते हैं। यस, ओके। फिर हमने क्लासिफाई किया था ड्राइंग्स को, याद है आपने? ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में बनाया था आपने, अलग अलग क्लासिफिकेशन के टाइप्स निकाले थे, बेस, एनिमल, नॉन लिविंग, लिविंग, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, विथ फोर्स, विदाउट फोर्स, ये सब जो आया था, इससे क्या क्या सीख सकता है बच्चा? क्लासिफिकेशन हो सकता है चीजों का, क्योंकि क्लासिफिकेशन एक चीज है जो सीखनी चाहिए, राइट? स्कूल में हम सीखते हैं। सो अलग अलग चीजों का क्लासिफिकेशन हम सिखा सकते हैं इसके थ्रू, ऐसी एक्टिविटीज के थ्रू।
लिविंग थिंग्स लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग। हम कोई भी चीज मैं बच्चों को बोलूं ड्रॉ करने को और क्लासिफाई करने को बोलूं तो कोई भी टॉपिक में क्लासिफिकेशन सिखा सकती हूँ, कोई भी टॉपिक जिसमें दिखता है, राइट, बच्चे को जो चीज कॉन्टेक्स्ट में दिखती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लेके, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, इसमें करके सीखेगा बच्चा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, यस, ओके। एंड जब हमने पेपर प्लेन बनाया और रिकॉर्ड किया डेटा और शेयर किया, उससे क्या क्या सीख सकता है बच्चा? उससे तो आपने बहुत कुछ खुद बोला था, क्या क्या सीख सकता है बच्चा? जब आपने प्लेन बनाया, डेटा कलेक्ट किया और जनरलाइजेशन निकाला था ग्रुप में, उससे क्या क्या बच्चा सीख सकता है? मैम डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट के यूनिट्स हम सिखा सकते हैं बच्चों को। ओके ओके, दैट्स राइट। उसमें हम कितना फोर्स अप्लाई किए वो कोर्सेज बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स करेक्ट। सो ये सब तो सब्जेक्ट हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, क्वेश्चन हैं। यस, जब हम ग्रुप में काम कर रहे थे मैम खुद से देखा था। हाँ बोलिए मैम, खुद से करके सीखेगा और एंजॉय भी करेगा। एग्जैक्टली, सो लर्निंग बाय डूइंग इट्स इम्पोर्टेंट, ओके। जॉयफुल लर्निंग, क्योंकि वो मजे से कर रहा है, मजे से ज्यादा ही सीखेगा, तो वाई में वो आ जाएगा। ऑल्सो अगर हम ग्रुप में कर रहा है वो बच्चा, तो कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, टीम वर्क, करेक्ट, एक नाप रहा है, एक फेंक रहा है। मैम खेल खोल में सीखो भी इसका नाम दे सकते हैं बच्चों। खेल खेल में ही बच्चे को बहुत सारा चीज सिखा सकते हैं। करेक्ट, लैंग्वेज बिल्कुल सही, यस। प्लेवे मेथड, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ओके। नाउ लास्ट हमने जो एक्टिविटी आज करी थी, हमने मूवी को एनालाइज किया था। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? इस मूवी से आपने ऑलरेडी कर लिया इसका रिफ्लेक्शन, राइट, व्हाई और टू लर्न व्हाट। हमने सब्जेक्ट्स बहुत सारे निकाले, बहुत सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स निकाले, और व्हाई क्या हो सकता है। बट हम कभी भी मूवी दिखाते हैं तो बच्चा क्या सीखेगा, कैसे क्या क्या सीख सकता है? मैम मूवीज के थ्रू जो, यस मैम, जो मूवीज हैं अगर हम उस वे में बच्चे को दिखा रहे हैं तो उसमें जो हमारे सेंसेस हैं वो एक्टिव होते हैं, और जो बच्चा है उसका कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी चीजें हम मूविंग चीजें दिखाते हैं जो हिलती है, इस तरीके से मूवेबल चीजें होती है, वो बच्चे के कंसंट्रेशन को अपनी और ज्यादा इजी तरीके से वो उसको कैच करता है, और उसको लॉन्ग टाइम तक उनकी मेमोरी में वो स्टोर रहता है, वो जल्दी उसको फॉरगेट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही, राइट। बहुत जरूरी है कि हम विजुअल चीजें भी दिखाएं ताकि उससे लर्निंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल हो जाती है, रादर देन सिर्फ हमारे बोलने से। सो उसमें विजुअल भी हो रहा है, ऑडिटरी भी हो रहा है। ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा सेंसेस यूज हो रहे हैं। किनेस्थेटिक जिसमें हमने बॉडी भी यूज कर ली, तो विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, तो 3 तो आ गए। मतलब आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बेटर और स्ट्रॉन्गर होगी, और ये नोन है, ये मतलब प्रूवन है कि ऐसा होता है। तो हमें जब पता है तो हमें हमेशा अपने लेसन्स ऐसे ही प्लान करने चाहिए, राइट? ओके, तो यस, थैंक यू। ओके, आप मुझे सिर्फ एक पर्सन का वीडियो ऑन दिख रहा है। सो आई थिंक नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई वुड लाइक टू हियर आपके कुछ समथिंग न्यू दैट यू लर्न फ्रॉम द सेशन, समथिंग फन, समथिंग नाइस। आपको क्या, आपको याद रहेगा इस सेशन के बाद? एक वर्ड भी चलेगा। यस मैम, बोलिए। रिफ्लेक्शन, आपके इस सेशन से आप क्या सीखे, आपको क्या याद रहेगा, कुछ भी, एक वर्ड भी चलेगा। मैम सीखने का तरीका सीखे कि किस तरीके से बच्चे को हम लोग मतलब खेल खेल में सिखा सकते हैं, और मतलब बच्चे लोगों को रुचि पैदा कर सकते हैं। जैसे आप एरोप्लेन बच्चों को, जो वीडियो आपने दिखाया कि कैसे, तो वो चीज बच्चे उसमें मतलब रुचि भी लेंगे कि कैसे हम उसको करें, और उससे सीख भी सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई?
मैम बच्चे क्या है पढ़ के बोर टाइप फील करते हैं, और जैसे कि वो बोर हो गए तो फिर अमित सर 1 मिनट। हाँ प्राची मैम बोलिए। मैम जैसे बच्चों को पढ़ना थोड़ा सा हर टाइम पढ़ना थोड़ा सा बोर लगता है, और जैसे कि ये जो है वो एक उन लोग में इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि ये क्या बोलना चाहिए, वो मनोरंजन है ना, तो उसके वजह से बच्चे हाँ जॉयफुल, मजे से सीख रहे यस हैं, मैम। राइट? तो जॉयफुल हाँ हाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग है ना। जी जी जी। तो मैम इसमें ना उन लोग की एक्साइटमेंट रहेगी, एक्साइटमेंट के साथ साथ स्कूल के प्रति उनका जो लगाव है वो भी कुछ इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ उनको पढ़ने में भी मजा आएगा, प्लस ये सब एंटरटेन करने में भी, ये सब उन उससे सीखेंगे भी, एंटरटेन भी करेंगे, प्लस सीखेंगे भी, उनका माइंड जो है वो अलग डाइवर्ट भी होगा। बिल्कुल हर चीज बच्चों के लिए बेनिफिशियल है मैम ये। करेक्ट, ये फुल विन विन है फॉर हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ मटेरियल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन देना और वो ही सब करेंगे और वो सीख भी लेंगे बड़े मजे से, है ना। जी जी। प्लस उनका माइंड भी उनका तेज होगा मैम, जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, जो क्या नाम है, जैसे क्रिएटिव, उनका जो माइंड है वो क्रिएटिव होगा। जैसे कि हाँ यस मैम, वो जैसे कि अभी प्लेन बनाए हैं ना, उसके अलावा वो और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गई, और भी कुछ 3D में अपने ह्यूमन बॉडी को यूज करके वो लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उससे क्या है, वो स्ट्रक्चर सोचने लगेंगे, और उन लोग का जो माइंड है वो और तेज चलने लगेगा कि हम इससे और क्या बना सकते, और क्या बना सकते। ऐसे बच्चे क्रिएटिव हो जाएंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, यस करेक्ट। थैंक यू प्राची मैम। अमित सर। थैंक यू मैम। जी मैम बोलिए। हाँ मैम, जैसे मैम ने बोला कि यह छोटे छोटे क्रिएटिविटी होती है मैम, मनोरंजन के साथ हम लोग छोटे छोटे क्रिएटिविटी करके बच्चों के साथ कम समय में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को आसानी से अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, और वो हमेशा के लिए उनके माइंड कॉन्सेप्ट में स्थायी रूप से वो ज्ञान आ जाएगा मैम, नॉलेज। या थैंक यू। यस किरण मैम, आप कुछ बोल रही थी? यस मैम जैसे इससे पहले बताया गया मैम कि करके सीखना, मैम बच्चे जितना अपने से करके सीखेंगे मैम, उतना उनके अंदर बुद्धि का विकास होगा, मानसिक शारीरिक विकास होगा। मैम कहा जाता है मैम कि जिसको हम लोग जितना ज्यादा करेंगे सीखेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर क्रिएटिविटी आएगी, उतने अंदर हमारे सीखने की बुद्धि का विकास होगा, और हम और अधिक सीखेंगे। अगर हम नहीं सीखेंगे मैम, नहीं करेंगे किसी भी चीज को, प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे मैम, तो उसमें हमें ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी। खुद से करेंगे तो उसमें ज्यादा हमें नॉलेज मिलती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यस, मुझे तो दिख रहा है कि आप ही लोग इतने मोटिवेटेड हैं और आप ही लोग चेंज लाने वाले हैं आपके क्लासेस में, और फिर आपके ही बच्चे शाइन करने वाले हैं। करेक्ट, हमें टेक्स्ट बुक से निकल कर यही सब तो करना है ना। यस मैम। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा। मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ इंटरेक्ट करने में। आप लोग काफी इंटरेक्टिव हैं और मुझे काफी चीजें सुनने को मिली, बड़ी मजेदार, और आई होप आपको भी अच्छा लगा ये सेशन। मैम बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातों को हम लोग अच्छे से सुने भी। यस मैम। बहुत मिला खेल खेल में बच्चों, मतलब कैसे वो मजा आया हम लोग को। आज पतंग भी उड़ाए पतंग नहीं क्या कहेंगे, ये प्लेन उड़ा मैम। हाँ मैम, आज अरे की मैं मीटिंग चीज में आपको ऐसा लगा बोलना था, बच्चे हम ही हैं, आप हमें टीचर ही गाइड कर रही हैं, और हमें भी कुछ सीखने को मिला, वैसे टाइप को भी फील हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, यस। मैम बोलते हैं मैम सीखने का कोई एज नहीं होता है मैम, वही आज हमें महसूस हुआ है ना। हम खुद बच्चे बन गए थे ना पेपर प्लेन उड़ाते हुए। यस मैम। वही पॉइंट है, हमें मजा आ रही है तो बच्चों को भी मजा आएगी, राइट। हेलो। यस यस प्राची मैम एक कॉम्प्लीमेंट थी मैम आपके लिए, आप यदि परमिशन देंगे तो मैं बोलूंगी।
कॉम्प्लीमेंट है तो कोई बात नहीं, बोल दीजिए ऑफ कोर्स। पता नहीं मैम, जब से मैं आपको देख रही हूँ मेरे को यही लग रहा है। हाँ बस मतलब हमने उनको ले लिया है ट्रेनिंग्स देने के लिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए एटलीस्ट आप मेरी शक्ल देख के सुन तो रहे हैं। इफ यू थिंक कोई एक्ट्रेस है। मैम आपका बोलने बोल भी बहुत अच्छा रही है, शक्ल का बात नहीं है, शक्ल तो आपकी प्यारी है ही है, बोल भी बहुत अच्छा रही है, जो हम लोग उतने देर से सुन रहे हैं। योर वॉइस इज नाइस। Thank you so much. Thank you so much. It was lovely to have it was a great webinar और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबको मिलके। अभी 2 और हैं एंड आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट करिए प्लेटफॉर्म पे भी, और हम व्हाट्सएप पे डालते जाएंगे आपको कुछ मैसेजेस, प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा। डोंट बी शाय नाउ, हम थोड़ा जानने लगे एक दूसरे को, ठीक है? सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल। आपको कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज रीच आउट। Okay? Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. I will see you next after 2 weeks. Okay? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.